ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ۔ اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا۔ انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی۔ اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی، لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا۔ ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا۔ لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کی۔ اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے، وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ساعہ، جبکہ زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے، شیء عظیم۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی۔ تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے، اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے۔ یہ جو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق و سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجیے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اب الفاظ پر توجہ کیجیے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ۔ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے،
जिनमें से 4 तो मैं यहीं आपको इस वक्त गिनवाऊंगा, और सबसे अहम जो इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए कि बड़ी तावील की जरूरत है, वो खुद अल्लाह के लिए इस लफ्ज का इतलाक हुआ है। चुनाचे 2 जगह फरमाया गया है सूरह आले इमरान में, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, एक जगह व इलैहिल मसीर, ये आयत नंबर 28 है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु व इलैहिल मसीर। अल्लाह ताला तुम्हें डराता है, खबरदार करता है अपने आप से। अल्लाह का के लिए लफ्ज नफ्स आ रहा है, अल्लाह अपने से डरा रहा है, अपनी पकड़ से, अपनी सजा से, अपनी उकूबत से, और उसी की तरफ लौटना है। आयत नंबर 28 सूरह आले इमरान। इसी सूरह मुबारका की एक ही आयत के बाद आयत नंबर 30 है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह ताला तुम्हें डरा रहा है अपने से। यहां नफ्सहु का लफ्ज जो आ रहा है, अल्लाह की जात के लिए आ रहा है। इसी तरीके से 2 मरतबा ये लफ्ज आया है जात बारी ताला पर इतलाक के साथ सूरह अनआम में। आयत नंबर 12 में फरमाया, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया। अब यहां नफ्स का लफ्ज अल्लाह की जात के लिए आ रहा है। और दूसरी जगह आयत की, ये सूरह अनआम की आयत नंबर 54 है, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया। जाहिर बात है कि इस लफ्ज से यहां पर अब अल्लाह ताला की जात तो न तो उसका कोई तजदिया हो सकता है, न उसके अज्जा हैं, न उसके लिए नफ्स का उस मानी में हम कोई तसव्वुर कर सकते हैं जैसे हम अपने नफ्स के लिए नफ्स का इतलाक करते हैं। फिर ये कि नफ्स जो है जान के मानी में अगर आए तो उसके लिए भी अल्लाह ताला के लिए लफ्ज उस मानी में मुस्तअमल नहीं। तो मालूम ये हुआ कि एक मफहूम इस लफ्ज का है जात, कोई हस्ती, बस इजमालन उसकी जात के लिए इस लफ्ज का इतलाक हो रहा है। दूसरा लफ्ज, इस लफ्ज के दूसरा मफहूम जो बहुत कसरत से आया है कुरान मजीद में, वो है जान। इसलिए कि फरमाया गया कि जब फरिश्ते जान निकालेंगे तो उसके लिए अल्फाज आए, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान। अब जाहिर बात है कि जिस्म में से जान खींची जाती है, फरिश्ता जो है खींचता है, नज़ा के मानी खींचना। तो ये जो हालत नज़ा तारी होती है, तो जब फरिश्ता कहता है अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, तो यहां इससे मुराद क्या है? जान है। अब यहां जिस्म रह गया, यहीं पर जसद बेजान रह गया है, फरिश्ता जिस चीज को लेकर गया है वो उसकी जान है। तीसरा इतलाक इसका और भी लतीफ है। अब उसको अब नहीं कह सकते कि उसको शऊर के लफ्ज से ताबीर करें, इसलिए कि सूरह ज़ुमर में फरमाया गया कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह ताला कब्ज़ कर लेता है नफ्स को मौत के वक्त, और जब मौत का वक्त नहीं आया होता तो नींद के वक्त। अब नींद के वक्त जाहिर बात है कि जान जिस्म से नहीं निकलती, जान तो मौजूद है। आदमी सो रहा है, कोई हैवान सो रहा है तो बेजान नहीं है, मुर्दा नहीं है, जान उसमें है। यहां इस लफ्ज जो आया है दूसरी मर्तबा, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, तो ये जो हालत नींद में जो चीज सल्ब की गई है, जो चीज खींच ली गई है, जिस चीज को अल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया, वो इंसान का शऊर है। तो शऊर के लिए भी इस लफ्ज नफ्स का इतलाक है। और चौथा इसका जो सबसे ज्यादा कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज है, वो इंसान का वजूद कुल्ली। इसमें उसकी रूह भी आ गई, उसकी जान भी आ गई, उसका वजूद भी आ गया, उसका नफ्स अम्मारा भी आ गया, उसके अंदर उसका ज़मीर भी आ गया, उसके क़ल्ब में जो कुछ वदियत शुदा फैकल्टीज हैं, लताइफ है, वो भी आ गए। तो बहसियत मजमूई पूरे इंसान पर, उसकी हकीकत पर इस लफ्ज़ का इतलाक़ हो। तो ये मैंने 4 इस्तेमालात आपके सामने रखे, जिनमें अहम तरीन है खुद अल्लाह की ज़ात पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल। इन चारों को ज़हन में जब रखिएगा तो नफ्स का मफहूम आएगा। एक और लफ्ज़ इसके बारे में नोट कर लें कि नफ्स के साथ ही एक लफ्ज़ नफस आता है, फे के ज़बर के साथ। और ये अजीब बात है, जैसे रूह और रीह हुरूफ असली एक ही, रीह हवा और रूह, उस रूह के बारे में तो बड़ी तवील बहसें जो है हम मुख्तलिफ औकात में करते रहे हैं, और मस्जिद में जुमे के खिताबात में इन दिनों यही मजमून जो है 3-4 जुमों से ज़ेरे बहस चला आ रहा है। रूह और रीह में जो ताल्लुक है वही नफ्स और नफस में। नफस इस सांस को कहते हैं जो आता है और जाता है, हवा अंदर दाखिल होती है फेफड़ों में और फिर बाहर निकलती है, नफस है।
नफस की जमा अनफास आता है, जो सूफिया के यहाँ पास है अनफास का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र जो है इंसान इसकी आदत डाले कि कोई सांस भी गफलत में न निकले। जैसे कि वो शेख सादी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया है कि हर सांस जब इंसान के अंदर जाता है मुझे में तक़वियत होता है, जब बाहर निकलता है तो सफाई का जरिया बनता है। बस बर हर नफस 2 शुक्र वाजिब है। बस साबित हुआ कि हर सांस पर 2 मरतबा शुक्र करना वाजिब है कि एक मरतबा सांस अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गई और वो आपके लिए एनर्जी का जरिया बनी, आपकी कुव्वत का जरिया बनी, और दूसरी मरतबा वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ चीजें लेकर बाहर आ गई तो वो तनकिया और जिस्म की सफाई का जरिया बनी। बस बर हर नफस 2 शुक्र वाजिब। तो नफ्स और नफस और रूह और रीह हरूफ असली एक ही है, जो ताल्लुक उनमें है वही इनके माबैन भी मौजूद है। अब ये नफ्स जो है इस तमाम इस्तेमालात को सामने रखिए तो इससे मुराद जो निकलेगी वो ये है इंसान की असल हकीकत। अल्लाह ताला उसे अपनी असल हकीकत से, अपनी असल जात से गाफिल कर दे। उसके सामने अपना जिस्म तो है, उसके तकाजे तो हैं, उसे एहसास है कि पेट खाने को मांग रहा है, भूख लगी हुई है, हंगर पेन हो रहे हैं, उसे एहसास है कि सर्दी है, मुझे कोई गर्म कपड़ा जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ओढ़ लेना चाहिए, उसे अपने जिस्म के तकाजों का पूरा पूरा एहसास। लेकिन जो उसकी असल हकीकत है, जो असले इंसान उसमें मुज़मर है, जो उसका हकीकी वजूद है, जिसकी बिना पर वो अशरफुल मखलूकात है, जिसकी बिना पर उसका ये मकाम है जुमला मखलूकात के अंदर, जो अल्लाह ने उसे अता फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला, उससे वो गाफिल हो जाता। ये है दर हकीकत वो शय कि इस आयत को अब रखिए एक मकूला या बाज हमारे यहाँ सूफिया तो उसको हदीस की हैसियत से पेश करते हैं, मुहद्दिसीन उसे हदीस तो की हैसियत से तो कबूल नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से हजरात जो है उसे एक हकीमाना कौल, किसी के हकीमाना मकूले की हैसियत से तस्लीम करते हैं, और वो दर हकीकत इस आया मुबारका का कौन वर्ष है, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफ़ रब्बहू। बिल्कुल ये कि जिसने अल्लाह को बुलाया वो अपने आप से गाफिल हो गया, अपनी हकीकत से बेखबर हो गया। जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। मुझे 2 अशार याद आ रहे हैं, पता नहीं पूरे ज़हन में होंगे या नहीं, मफ़हूम है ज़हन में। कराजूई चरा कर पेश ताबी कि ऊ पैदाश तू ज़ेरे नकाबी, तलाशे ऊ कुनी जुज खुद न बीनी, तलाशे खुद कुनी जुज ऊ न याबी। किसको तलाश कर रहे हो? ये जो इंसान के अंदर एक फितरी जज्बा है, मैंने कई दफा अर्ज किया है अपनी गुफ्तगुओं में कि हाई स्कूल में तकरीबन 5 साल तक मुतवातिर एक दुआ हम सुबह पढ़ते रहे, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। अब ये एक वाकया है कि फितरत इंसानी में एक तलाश मुतमर है, एक बेचैनी सी, जो खुसूसन ज्यादा हसास और ज़हीम और फहीम लोग होते हैं, उनके अंदर एक बेकली एक बेचैनी सी होती है, जिसको कि मौलाना रूम ने ताबीर किया है विष्णु अज नए चू हिकायत में कुनत बस जुदाई हा शिकायत में कुनत। मालूम होता है कहीं से कोई हिजर की कैफियत है, कहीं से कोई अलहदगी हो गई है, अपने मंबे से कहीं हम जुदा हो गए हैं, अपने मरकज से कहीं मुनक़ते हो गए हैं। ये बेकली और बेचैनी जो है इसमें इंसान तलाश करता है, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है। अब किसका है ये? अल्लामा इकबाल के अशार है, कराजी किसको तलाश कर रहे हो भाई? चरादर पेशोताब, इसलिए ये पेशोताब, ये बेकली, ये बेचैनी, कराजूई चरादर पेशोताब कि ऊ पैदास तू ज़ेरे नकाबी। वो अल्लाह जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो तो हवैदा है, आया है, अजहर मिन शम्स है, मामूर हो रहा है आलम में नूर तेरा, अजमा ताबे माही सब है ज़हूर तेरा, तू ज़ेरे नकाब आ गया। अब ये जुमे की तकारीर में मैं ये बयान कर चुका हूं इन दिनों में, कश्फुल महजूब, महजूब तो हम हैं, गिलाफ तो हमारे दिलों पर चढ़ गए, जंग तो हमारे आईने कल पर आ जाता है, रुख तो हमने मोड़ा हुआ है अल्लाह की तरफ से, हम उसकी तरफ रुख नहीं कर रहे, अपना रुख नहीं कर रहे। हम तो माइल में करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल नहीं। तो ये जो है हम हैं असल में जो महजूब है, किसी महजूब के लफ्ज़ को अल्लामा यहाँ लाए हैं ज़ेरे नकाब।
زیر نقاب تم ہو کہ وہ پیداش وہ تو ذرے ذرے سے پیدا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی